کلام خدا کی طرف، اور آج کا کلام خدا ہم دیکھتے ہیں جو کہ انوائنٹنگ پہ ہے، مسح پہ ہے، ممسوح ہونے پہ ہے۔ اور آج کی آیت مقدسہ پہلا عہد نامہ جسے ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، غلط العام، تو پہلا عہد نامہ ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی زندہ خدا کی احبار کی کتاب The book of Leviticus chapter 8 8واں باب and verse 23 23ویں آیت کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں، احبار کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ اور اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے ہارون کے دہنے کان کی جو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دائیں پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا۔ کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا ہم تیرا شکر ہو تیرے نام۔ عزیزو، آپ نے یہ کلام مقدس سنا کہ مقدس موسیٰ نے تیل لیا اور تیل کو کان کی لو، رائٹ ہینڈ والا کان جو ہے دائنا کان، اس کی کان کی لو پہ لگایا، ہاتھ کے دائنے ہاتھ کے انگوٹھے کی لو پر لگایا اور پیر کے انگوٹھے کی لو پر لگایا۔ اور آپ پورا چیپٹر پڑھتے ہیں تو مقدس موسیٰ جو ہے وہ مخصوصیت کر رہے ہیں۔ وہ کس کی مخصوصیت کر رہے ہیں؟ ہارون کی، اپنے بھائی کی اور ان کے بیٹوں کی مخصوصیت کرتے ہیں۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ مسح کیا جاتا ہے کسی انسان کو، تو ریلیجیس طور پر ہم دیکھتے ہیں لفظ مسح کیا ہوا۔ مسح سے کیا مراد دیتے ہیں؟ آج کا ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے۔ تو مسح سے کیا مطلب بنتا ہے یا کیا سمجھتے ہیں؟ مخصوصیت کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے یا اس کا مفہوم کیا ہے؟ چنا ہوا۔ اور کوئی بائبل میں لکھا ہے میں نے تمہارے ماں کے پیٹ سے تمہیں چنے ہوئے تو سارے ہی ہیں۔ اور کوئی مسیح کے لیے تیار کرنا، خود کو مسیح کے لیے خود کو تیار کرنا، زبردست بھی بات ہے۔ اور کسی ایک اسپیسیفک کام کے لیے ایک بندے کو انوائٹ کرنا ہے، ذمہ داری دے دینا۔ آپ سبوں کے جواب بالکل درست ہے۔ آپ سبوں نے جو جو فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا۔ ایسے ہی زندہ خدا جو ہے وہ اپنے کاموں کے لیے لوگوں کو مخصوص کرتا ہے، انوائنٹ کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول میں کچھ پرفیکٹ ہوتے ہیں، کچھ مانیٹر ہوتے ہیں، ان کو اس کام کے لیے سونپا جاتا ہے کہ آپ ایک کام کیجیے۔ آپ سوچیں کہ وہ جسمانی سیکولر کام ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے، تو جب یہ سیکرٹ کام آپ کرتے ہیں، روحانی کام کرتے ہیں، تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ مسح کرنا خدا کی طرف سے ایک عہد ہے۔ اب جب آپ مسح کرنا کو دیکھتے ہیں تو مسح پہلے عہد نامہ کے ساتھ ساتھ دوسرے عہد نامہ جسے نیا عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی بے شمار آپ کو واقعات ملتے ہیں۔ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، آپ نے بائبل مقدس میں سب سے پہلے کس کو مسح ہوتے ہوئے دیکھا یا سنا؟ تھوڑے بھی کئی ایسے نہیں جن آپ نے رہائش تو مکاشفہ تک بائبل پڑھی۔ جی، آدم کو دیکھیں، روحانی طور پر آدم سے لے کے مکاشفہ تک سارے مسح شدہ تھے، لیکن تحریری طور پر جب ہم دیکھتے ہیں، جی ساؤل کو مسح کیا تھا بادشاہ۔ واہ، زبردست۔ ساؤل کو مسح کیا گیا، کس نے مسح کیا؟ مقدس سیموئیل نبی نے۔ اور کوئی اس سے پیچھے جائے، اس سے بھی پہلے اگر کسی کو کیا ہو؟ آج بکاس نظر نہیں آ رہے۔ ایلیا نے الیشا، چلے ایلیا نے الیشا، یہ بھی بڑا زبردست سوال ہے۔ ایلیا استاد اور الیشا ان کے شاگرد، انہوں نے بھی ان کو مسح کیا۔ اور کوئی؟ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے بھی یشوع کو کیا تھا۔ شروعات میں آتے ہیں تو موسیٰ کا ذکر ملتا ہے کہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون، جو آیت مقدسہ آپ نے پڑھی، ہارون اور ان کے بیٹوں کو مسح کیا، اور یشوع بھی جو کہ ان کا شاگرد تھا۔ لیکن عزیزوں، میں آپ کے سامنے ایک اور استباق پڑھے دیتا ہوں، سنیے گا۔ اب میں آپ کو اس زمین سے باہر لے کے جانے دوں۔ میرے ساتھ دیکھیے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 14واں باب۔
इस 14वें बाब में आप जानते हैं कि आपको किसी एक शख्सियत के बारे में मिलता है। यशायाह नबी 14वां बाब के साथ साथ आप इज़ीकियल 28वां बाब भी निकाल के रखें। चले यशायाह नबी 14 बाब को फिलहाल छोड़ देते हैं, हम पढ़ते हैं इज़ीकियल 28वां बाब और उसकी 13वीं से 14वीं आयत। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है खड़े होकर, गैब्रियल भाई के अलावा। 13वीं से 14वीं आयत पढ़ सकते हैं। 28वां बाब 13वीं से 14वीं आयत। मैं बड़े सुकून से आपको लेके चल रहा हूँ, बड़े आराम से लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। जी। अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था। मसलन याकूत सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरज और नीलम और जमरूद और गोहर शब चराग और सोने से तुझ में खातिम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। तू ममसूब गुलोबी था और साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहां आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का लाख लाख शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तमजीद हो। अजीजों, आपने देखा कि आज मसा का टॉपिक है। इस आयत का आप कैसे कनेक्शन निकालते हैं मसा के टॉपिक पे? लूसीफर को बनाया गया, जबकि लूसीफर को बनाया गया, एक लफ्ज इसमें इस्तेमाल हुआ है। 4वीं आयत का पहला हिस्सा जब देखते तो लिखा है तू ममसूक रोबी था। अब ये ममसूक रोबी जो है ये बना कैसे? ये निहायत ही दुनिया के ऐसे अमीर तरीन पत्थरों से, ऐसे नायाब पत्थरों से कि जो इनमें से एक भी आपके पास आ जाए तो आप अरब खरबपति बन जाए। मिसाल के तौर पे कुव्वत सुर्ख, पुखराज, याकूत सुर्ख, पुखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और ज़बुर्ज और नीलम और जमरूद और गोहरे शब चराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी। आप देखते हैं कि यहाँ पे एक तख्लीक की गई है। आप और मैं किससे बने? मिट्टी से बने। आप और मैं बने मिट्टी से, मट्टी से बने हम। ये जिस मखलूक की बात की जा रही है ये सोने चांदी जेवरात से बना है, मोतियों से बना है। निहायत ही जबरदस्त किस्म की नगीना साजी इसमें की गई। कायनात का एक बहुत बड़ा शाहकार कह सकते हैं आप इसे। आगे जब पढ़ते हैं तो ये आग से बनाया गया। किससे? आग से बनाया गया। जड़ा बंदा आग को है, आपने देखा होगा अक्सर मूवीज में जो आग निकालते हैं, सामने वाले को कुछ नहीं समझते। ये आग से बनाया गया, कीमती पत्थरों से बनाया गया। इसमें 9 पत्थरों का जिक्र है। तो सरदार काहिन जब चेस्ट प्लेट पहनते थे अपनी, उनके ऊपर 12 पत्थर होते थे और वो 12 पत्थर इसराइल के 12 कबीलों को जाहिर करते थे। नए ऐहदनामा में खुदा यीशु मसीह के 12 रसूलों को वही कीमती पत्थर जो जिनसे ये बने, उनमें से 9 पत्थर इसमें जिक्र किया गया है। अब आप देखते हैं 14वीं आयत के पहले हिस्से में तू ममसूक रोबी था और तू साया अफगन भी था। आपको समझ आ रही है मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? आज आप इसे शैतान इब्लीस कहते हैं, उससे पहले लूसीफर द सन ऑफ द मॉर्निंग। ये लूसीफर की बात की जा रही है कि खुदा ने इसको इस तरह खातिम साजी की और इस तरह इसको एक शाहकार पैदा किया। लेकिन जब 4वीं आयत में लिखा है, वो लिखा है कि तू ममसूब ही था। ममसूब किसे कहते हैं? ममसूब का मतलब यही है कि मसा शुदा, मसा किया हुआ। मैंने आपसे सवाल किया था बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले किसे मसा किया गया? आपके सामने जवाब जब आता है तो आप तो दुनिया से बाहर निकल गए, आप आसमानों पे पहुंच गए। आसमानों पर एक मखलूक को मसा किया गया था, उसे काम सौंपा गया था। और जब मसा किया गया
वो कोई और नहीं बल्कि लूसीफर। अब एक और सवाल पैदा होता है, आज जब हम मसा की सेरेमनी करेंगे तो किसके नाम से मसा करना चाहिए? बपतिस्मा किसके नाम से लेते हैं? तो मसा किसके नाम से करेंगे? सिंपल सी बात है, बाप बेटे और उनको उसके नाम से मसा करेंगे। यहां पर जो तस्लीस में तौहीद के ऊपर सवालात उठाते हैं, यानी कि कहते हैं कि जाहवे विटनेस वाले हमारे बहन भाई जो कहते हैं कि सब कुछ यहोवा खुदा है, या ओनली जीसस वाले बहन भाई जो कहते हैं कि जी जीसस ही सब कुछ है, यहां पर जब आप देखते हैं तो खुदा का वो कौल जो आप नए अहदनामा में देखते हैं कि तू सब कौमों में जा और उन्हें बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दे, तो मसा यहां पर किसके नाम पे किया गया? आसमान पर। तब तो इंसान था ही नहीं। अभी ये विशाल होते तो वो आपको बताते, क्योंकि ये हमने वेरी अर्ली टीचिंग्स में ये सीखा हुआ है, आज से 5-6 साल पहले। इस पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा हुआ है, यशाया 14 और 28, इज़िकियल की किताब, क्योंकि ये दोनों ही लूसीफर से इनका लेना देना है। पहले उसकी बनावट, फिर उसका गुनाह और फिर उसका अंजाम। अब जब आप देखते हैं कि ममसूक रोबी को मसा किया, ऐसा लूसीफर एक शाहकार, कायनात में सबसे बड़ा शाहकार, जिसे मसा किया गया, और मसा किसके नाम से किया गया? आसमान पर कौन था? आसमान पर अब किसे देखते हैं? खुदा। खुदा कौन है? क्या नाम है खुदा? खुदा फारसी जुबान का लफ्ज है, यहोवा खुदा था। तो फिर तो यहोवा विटनेस वाले सही हुए ना, सब कुछ यहोवा ही। और आपने मुकाशफा की किताब पढ़ी, उसका 5वां बाब जब आप पढ़ते हैं, मोहरे खोलने के लिए कौन आया? तो फिर तो आप देखते हैं कि खुदा का बेटा भी वहां पर मौजूद है। आप जब इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे आपको साफ साफ खुदा यीशु मसीह नजर आएंगे। फिर जब आप देखते हैं तो खुदा का रूह भी वहां मौजूद होता है। आप जब देखते हैं बाइबल मुकद्दस में जब भी किसी को बपतिस्मा दिया गया या जब भी किसी को मसा किया गया, तो वो बाप और बेटे और उसके नाम से मसा किया गया। और ये तालीम कोई आज की तालीम नहीं है। आप बाइबल मुकद्दस का सबसे शुरुआती लफ्ज जो देखते हैं वो खुदा है, एलोहीम है। आप जब नए अहदनामा की पहली किताब मत्ती की इंजील, उसकी पहली आयत का पहला लफ्ज देखते हैं तो वो यीशु है। और मुकाशफा आखिरी बाब की आखिरी आयत और उसका आखिरी लफ्ज जब आप देखते हैं तो वो आमीन है, यानी खुदा, यहोवा खुदा, यीशु मसीह और आमीन। ये जिंदा खुदा की जो पर्सनैलिटीज है ये आपको शुरू से नजर आएंगी। आप ओल्ड टेस्टमेंट में भी देखते हैं, जिसे पुराना अहदनामा कहा जाता है, वहां पर आपको यीशु मसीह कई वाकयात में नजर आते हैं, खुदा का रूह वाकयात में नजर आता है। तो शॉर्टली हम इस बात को देखेंगे कि कैसे ममसूक रूबी उस वक्त भी था और उस वक्त भी जो मसा किया जाता था वो बाप और बेटे और उसके नाम से किया जाता था। अब आप कहेंगे कि ये कहां लिखा है, तो आपको एक खुदा ने अकल सलीम भी दी है। खुदा ने अपना रूह भी हमारे अंदर फूका है, चाहे वो किसी भी दीन और ईमान का बंदा क्यों ना हो। लॉजिकल बात हो जानी चाहिए कि अपनी अकल पर बैठे। फिर बाइबल, मैं आपको कहूंगा कि बाइबल मुकद्दस में जो कुछ भी लिखा है ये आसमान पर पहले मौजूद था। आप जब इफ्सियों की किताब उसका 2 बाब पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में आपके पास जो कुछ भी है ये खुदा के पास आसमान पर मौजूद था। आप बागे अदन देखते हैं तो बागे अदन का सारा जो स्क्रिप्चर है या हैकल मुकद्दसा देखते हैं तो ये सारी आसमान पर वैसी मौजूद है, क्योंकि खुदा ने बाइबल में लिखा है जो जो आसमान पर था वो मूसा को कहा वैसे ही बनाना, तो उसने वैसे ही बनाया। आप जब बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते तो ममसूक रूह भी नजर आता है। खुदा ने फरिश्तेगान में से सबसे बड़ा लीडर जो फरिश्ता बनाया था उसे भी मसा किया। अब जब जमीन पर आप आते हैं तो जमीन पर भी मसा करने का प्रोग्राम है। मूसा अपने भाइयों को मसा करता है और कहता है इसकी कान की लौ पे, इसके अंगूठे की लौ पे, उसके पैर के दाहिने, तीनों चीजें दाहिने तरफ की, अंगूठे की लौ, कान की लौ और पैर के अंगूठे की लौ और कान की लौ और हाथ के अंगूठे की लौ को मसा करना क्यों? आप बाइबल मुकद्दस में ज़बूर की किताब में पढ़ते हैं तो
मुकद्दस दाऊद को जब मसा किया जाता है तो पूरा तेल उस पर डोल दिया जाता है, पूरा तेल उसके ऊपर डाल दिया जाता है। तेल आपको मिलेगा हर जगह। तेल की तशबीह नए अहदनामे में क्या है? यह तेल रूहानी तौर पर किसे दिखाता है? तेल खुदा के पाखरू को दिखाता है। खुदा के पाखरू की तशबीह जो है वो तेल से है। तो उत्ते एरा मतलब है जो ममसूक रोबी नु मसा कीता गया ही ते ओ भी खुदा दे पाखरू दे नाल ही मसा कीता गया। आज आप और मैं भी खुदा के पाखरू से मसा होते हैं, लेकिन खुदा का पाखरू है जो आपको और मुझे आजाद छोड़ता है। आप और मैं जब मसा हो जाते हैं तो किस लिए मसा होते हैं? आपने कहा जिम्मेदारियों के लिए। क्या जिम्मेदारियां हैं? खुदा का काम करना। और नए अहदनामा आप सभी ने पढ़ा हुआ है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? चले मैं और आसान कर देता हूं। क्या क्या खिदमतें हैं? खिदमतें कितनी हैं? कितनी? कौन कौन सी है? बपतिस्मा देना, गैर कौमों में मुनाफी करना। हाँ तो पढ़ा है। रसूल, नबी, मुबशर, उस्ताद, चरवाहे। रसूल, मुबशर, उस्ताद, नबी और चरवाहे। काम में ना सारा था वो ये जो सैमसन भाई बता रहे हैं। सवाल को समझिएगा, मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूं। काम सारे वही है जो सैमसन भाई आपको बता रहे हैं। खिदमतें आपको बता दी गई। कितने लोग हैं जो खुदा के मुबशर बनना चाहते हैं? जबरदस्त। कितने लोग हैं जो खुदा के नबी बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो खुदा के रसूल बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो खुदावन में दुनिया के उस्ताद बनना चाहते हैं? तो तू ही करने की आए हो, क्या करने आए? क्या करने? नीचे बैठ के मांगे मार के चले गए। आपको खुदा ने किस लिए चुना है? किस लिए चुना है आपको? अपने जलाल के लिए इस्तेमाल तो आवाज आई है। जी जी, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल। अच्छा, मेरा तो वक्त होता है नीचे से आवाज है, इसलिए मैं नीचे देख रहा हूं। तो ऊपर तो फिर मास्टर लोग बैठे हुए। अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कैसे होंगे? जब उसकी मर्जी के साथ जिंदगी। आप और मैं मसीह घर में पैदा क्यों? चलो आज एक छोटा है ना, एक टेस्ट भी आपका मेरा। असी तुसी मुसलमान या हिंदू का आज क्यों नहीं पैदा? मसीह घर में पैदा क्यों हुए? पहुंचा रहे। कितनी कोशिश, कितनी उम्रें हो गई हमारी? सही से बताना। आज ना अपनी उम्र नहीं छुपा रही। जी गुड बाप, आपकी कितनी उम्र है? 39। जी गैब्रियल भाई 38। जी अर्नस्ट 28। जी जी अंकल जी ਤੁਹਾਡੀ कितनी उम्र है? 62 साल। नानी जी आपकी? 75 साल। 104 साल। हाँ जी, मुनादी की थी, वसीदा पैगाम पहुंचाया। कैसे कोशिश करते हैं आप? वाह जी वाह, क्या बात। दादी जी के लिए जोरदार ताली। हाँ जी, हमारे एल्डर्स जो हैं वो तो कर रहे हैं, तो नौजवान कर रहे हैं। हाँ जी, कैसे करेंगे आप और मैं कुछ नहीं करते अजीजों। आप और मैं आते हैं, चर्च में बैठते हैं और चले जाते हैं। आप और मैं इस खुदा के पाक कलाम को कितना पढ़ते हैं? हर रोज कौन पढ़ता है? 2026 अभी चल रहा है, एक दिन भी न छड़े है। अब पैदाइश से मुकाशवा तक किस किसने पढ़ी हुई है? आप इसको पढ़े बगैर तो खिदमत कर ही नहीं सकते। आप इसको पढ़े बगैर खिदमत कर ही नहीं सकते। ना नबी की खिदमत, ना चरवाहे की, ना रसूल की, ना ही उस्ताद की, और ना ही आप इसको पढ़े बगैर खिदमत नहीं कर सकते। ये खुदा ने आपको एक लाइफस्टाइल गुजारने का तरीका बताया। अब जब तक आप इस तरीके को नहीं समझेंगे, आप अपनी मर्जी से लाइफस्टाइल अपना गुजारते रहेंगे।
खुदा आपसे ये नहीं कहता कि आप सारे काम छोड़ के यही करें। कभी रसूलों को आपने देखा है वो केड़ा केड़ा काम करते थे? नौकरी करते हैं? कौन सी नौकरी करते थे भाई? दूसरे रसूल का मिलता है वो तंबू बनाता है। नहीं, ये गलत है। ये नौकरी करते हैं जो खुदा ने इसकी वही करते हैं जाके। बाइबल मुकद्दस उर्दू जुबान में जब आप पढ़ते तो तर्जुमे कमजोर है। वो ना तंबू बनाते थे, ना वो खैमा बनाते थे, वो प्रेयर शॉल बनाते थे। इसमें कभी देखेंगे तालीम जो लिखा हुआ है लफ्ज वहां पे, हालांकि होए जिंदा खुदा दा सूरमा बनाए तंबू, ऐसा हो नहीं सकता। जब ओरिजिनल मतलब में जाएंगे तो वहां लिखा है वो तालीद बनाते थे। तालीद वो है कि यसू ने जेड़ी प्रेयर शॉल नहीं हुई, उसमें बड़ा एक जलाल है, बड़ी कुदरत है। कोई भी काम नहीं था करता इनमें से, पहला करते सन। यसू जो मार के जिंदा होए उनमें भुल गए, फिर पतरस मछियां फड़न लग गए। यसू तो पहला करते सन तो यसू तो बाद चो करते हैं, खिदमत के दौरान ये नहीं थे करते। तो हम तो आपसे ये भी नहीं करते कहते कि नौकरियां छड्डो दे फुल टाइम काम करो। हम तो आपसे ये कहते हैं नौकरियां भी करें, चले पैसा भी कमाएं, लेकिन ये है कि खुदा का काम भी तो करें। जी इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आप कहीं पे जॉब करते हैं ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जहाँ पे आपके कलीग्स हैं उन तक मसीह की खुशखबरी पहुँचाना आपका काम है। आपको अगर वो जॉब मिले तो इसमें भी खुदा की मर्जी कि आपने वहाँ पहुँचाना। बड़ी बात है, ये गैर कौमों में आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर भी खुदा, बाइबल मुकद्दस में ज़बूर की किताब 50वें बाब में लिखा है, 50वें ज़बूर में, कि तेरे चाल चलन से खुदा का जलाल जाहिर हो। आप नया नामे में देखते हैं यही तालीम हमें मिलती है। मैं बड़ी आहिस्तगी से आपसे इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आज का जो ये काम है ये आपको समझ में आ जाए। कई लोग मसा नहीं होना चाहते, वो ना नबूवत नबी बनना चाहते हैं, ना मुबशर बनना चाहते हैं, ना रसूल बनना चाहते हैं, ना उस्ताद बनना चाहते हैं, ना चरवाहे बनना चाहते। भला क्यों? मैं एक मिसाल देता हूं। इरफान भाई, आप बनना चाहेंगे इन पांचों में से कुछ? खिदमत लेना चाहेंगे खुदा की? जी जी आरनट भाई, आप कौन सी? तो लेते क्यों नहीं? टाइम आएगा तो लेंगे। आपने सुना? अब मैंने 10वां टाइम की दुआ है। जी बड़ी बात। जय मसीह की, जय मसीह की। अम्मा जी के लिए फिर से दुआ। आप देखते हैं मैंने एक इरफान का नाम लिया, वो मेरे फ्रेश स्टूडेंट है। आरनेट का नाम लिया, ये मेरे फर्स्ट स्टूडेंट है। तुम ही तैयार नहीं है। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूं ये क्यों तैयार नहीं। मैं अपने अजीज रिश्तेदार के बारे में बताता हूं कि जब उनसे बपतिस्मे की तालीम ली गई, अब उन्होंने लिया नहीं, मैंने कहा चले ठीक है आपकी मर्जी है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। तो बंदा पूछे तू वलीमे तो जाने तैयार नहीं, क्या तैयारी करनी है आपको? मैं हाले जरा गुनाहगार बहुत हूं, मैं जरा ना थोड़ा गुनाह पे कंट्रोल करना। आपने सुना ऐसा? मैं जरा अपने आप को तैयार कर लूं, मैं जरा भी बहुत गुनहगार हूं, मैं जरा गुनाहों को छोड़ दूं, मैं फिर मसा होऊंगा, या मैं फिर कोई खिदमत करूंगा, या मैं फिर कोई बपतिस्मा लूंगा। याद रखिए तीनों का काम है एक ही। तो मसीह का काम नहीं करना, चाहे बपतिस्मा लो, मसा हो वो, या खिदमत करो या काम करो, इन सब का मतलब एक ही है। मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं अभी गुनाह करता हूं। ऐसे ही है। कभी हमारे भी ज़हन में आता होगा, जब हम पुरानी लाइफ में थे, कभी आता होगा ज़हन में। तो बंदा पूछे अगर आप परफेक्ट होकर बपतिस्मा लेना चाहते हैं, या परफेक्ट होकर मसा होना चाहते हैं, या परफेक्ट होकर खुदा का काम करना चाहते हैं, तो फिर तो आप अपने कामों में तकब्बुर कर रहे हैं। फिर तो आप ये कह रहे हैं कि मैं अभी परफेक्ट हो चुका हूं, मैं एकदम जबरदस्त हूं, अब मैं कोई गुनाह नहीं करता, अब मैं मसीह का काम करूंगा। तो मसीह की कुर्बानी फिर किस लिए थी? क्या आप और मैं अपनी मर्जी से परफेक्ट हो सकते हैं? नहीं। क्या आप और मैं अपने कामों से A1 जबरदस्त हो सकते हैं? क्या मैं ये कहता हूं कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं अपने आप को तैयार कर लूं, मैं अपने आप को पाक कर लूं, मैं अपने आप को गुनाहों से दूर कर लूं और फिर जाके मैं मसीह का काम करूंगा? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आपके मेरे लिए मसीह यीशु ने अपनी जान का फिदिया दिया है।
आपके मेरे लिए मसीह यीशु ने अपनी जान का नजराना दिया है, क्योंकि उसे पता है कि आज भी मेरी नस्ल से नहीं है बल्कि आदम की नस्ल से है, और आदम की नस्ल तक आप नस्ल दर नस्ल देखे एक गुनाह चलता आ रहा है। आदम की नस्ल से एक खून के अंदर एक जेनेटिक प्रॉब्लम चलता आ रहा है, एक फोर्बिडन सिन चलता आ रहा है, एक जेनेटिक सिन चलता आ रहा है, एक नस्ली गुनाह चलता आ रहा है जो आज भी इनके अंदर है, और ये कहीं ना कहीं झोल खा जाएंगे। इसलिए मसीह यीशु को आपने कि मेरे लिए जान देनी पड़ी, ताकि मेरे ते मान ले आओगे तो फिर परफेक्ट होगे। तुम पहले ही परफेक्ट होके आ जाएंगे तो फिर तो आप अपने एक तो कामों पे तकब्बुर कर रहे हैं, और दूसरा आपको फिर मसीह की कुर्बानी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो पाक हो गए। हम तैयार नहीं हैं, या अभी वक्त नहीं है, या जब वक्त आएगा कि भाई हम यहां से बाहर जाए, कब मर जाए हमें नहीं पता। ये पांचों खिदमत जरूरी नहीं कि आप पुरपट के ऊपर करें। और कई ऐसे हैं जो अपनी नौकरी पे ये काम कर रहे होते, कई ऐसे जो बिना बोले ये काम कर रहे होते, कई ऐसे जो अपने एक्ट से ये काम कर रहे होते। क्या ही फिर बात है ना मूसा की कि काश के सारे नबी होते। अच्छा, उसने चरवाहा या रसूल या ये सब कुछ इसलिए क्या कि मैंने फिर से आपसे कहूं, चरवाहा नबी रसूल इन सब का काम एक ही है, इनका अजर भी एक ही है। नबी का मतलब है खुदा के कलाम को पेश करना, नबियोन नबूवत करना, द प्रोफेसी। प्रोफिटियो जब यूनानी जुबान में आप देखते हैं लफ्ज प्रोफिटियो मींस के आने वाले वक्त के बारे में बताना। कहां से बताना? खुदा के कलाम से। दैट्स इट। खुदा के कलाम को पेश करने वाला नबी होता, तो वो तो रसूल भी करता है, चरवाहा भी करता है, सारे खिदमत गुजार करते हैं। अब मसला ये हम करना नहीं चाहते। मैं फिर से ये कह रहा हूं, पुरपट पे खड़े होकर आपने नहीं करना, आपको पता भी नहीं होगा, शायद आप करते होंगे। सारे काम करें। मैं आपको किसी गुनाह से मना नहीं कर रहा, आप करना करें, आप जाने, आपका खुदा जाने, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि खुदा के पाक कलाम को भी पेश करें। आपकी मुखलसी सिर्फ इसी से है। मंसूख करो भी मसा किया जाना बहुत ही जरूरी है। आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, आपने फरिश्ते के बारे में जाना, कभी खुदावंद ने चाहे इसकी आपको डिटेल देंगे, लेकिन आप देखते हैं मुकद्दस दाऊद नबी को मसा किया गया। आप जानते हैं जब उसे मसा किया गया तो बहुत छोटा था वो, साड़ियां तो उम्र भी इन्नियां हो गई। उन्हें की मना की सैमुएल नहीं, नाम मैनू ना करी। अरे अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा, लाडला था वो। अब जब मसा किया, जिंदा खुदा की कुदरत देखे, जिंदा खुदा का कमाल देखे, जिंदा खुदा की गैरत देखे, और मसा शुदा लड़का, नौजवान लड़का शेरों के मुंह फाड़ता है, वो नौजवान लड़का रिछनियों को थप्पड़ मारता है, और नौजवान लड़का जो है जाति जूलिया जो है उस बड़े इब्लीस का कलाकमा करता है। वो नौजवान लड़का ऐसा सूरमा पहले यहूदा का बादशाह बनता है, वो नौजवान लड़का फिर इस्राएल का बादशाह बनता है। और वो नौजवान लड़के को देखिए, नए अहदनामे में उसका नाम कैसे लिया जाता है। यीशु मसीह ने उसके नाम को जलाल कैसे दिया, यीशु मसीह ने उसके नाम को बढ़ोतरी कैसे दी। यीशु जब चलते थे जाते थे तो पैदाइशी लंगड़े, पैदाइशी अंधे, पैदाइशी मजदूर उसे क्या कह के बुलाते थे? ऐ इब्ने दाऊद, ऐ दाऊद के बेटे, ऐ दाऊद के बेटे, ऐ दाऊद के बेटे। यीशु मुकाशफा में कहता है, मैं दाऊद की असल और नस्ल। हालेलुया, खुदा के बेटे दाऊद की बेटा को कहता है। मसा जब होंगे तो तभी तो शेरों और रीछों से लड़ेंगे, बड़े बड़े शयातीन का मुकाबला करेंगे आप। मैं एक मूवी देख रहा था, शेर और रीछ की लड़ाई हो गई। रीछ ज्यादा ताकतवर होता है शेर से। हाँ, दो शेर आ गए तो उन्होंने रीछ को मार दिया। इतने जोरावर आपके मेरे सामने आके धाड़ दे, हम हार्ट अटैक से मर जाए। रीछ जब खड़ा होगा आपके छत जितना है वो। उनको मारता था ये 16-17 साल का बच्चा। रूहानी तौर पर जब आप देखते हैं तो आप एक लफ्ज लेते हैं यीशु नाम। बड़े बड़े शयातीन, बड़े बड़े शेर जो धाड़ते हैं, आपकी रूहों को फाड़ने वाले हैं, जो रीछ आपकी रूहों को, नस्लों को फाड़ने वाले हैं, वो एक यीशु नाम से लश्कर के लश्कर निकल जाते हैं। यह है मसा होने की कुदरत। लेकिन आप और मैं मसा होना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम आते हैं, हम नीचे बैठे हैं,
कलाम सुने, पादरी को चंदा दे और घर जाए। अजीजों, भेड़ मत बनिए, भीड़ मत बनिए, बल्कि भेड़ बनिए। भीड़ तो यसू के पीछे भी बहुत थी, भेड़ थोड़ी थी। मसा होना बड़ा जरूरी है। आपने अलीशा और एलिया का मसा का नाम लिया, मसा की उनकी खिदमत बताई। कई लोग समझते हैं कि अब मैं मसा हो गया हूं तो अब मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। ऐसा होता है कि नहीं? अब मैं बपतिस्मा ले चुका हूं, नाउ आई एम राइचियस मैन, मैं एक रास्तबाज इंसान बन चुका हूं। अब मैं बपतिस्मा ले चुका हूं, मैं मसा हो चुका हूं, तो मैं अभी आजाद हूं। अब यीशु नाम मेरे साथ जुड़ चुका है, अब मैं जो है वो निजात याफ्ता हो चुका हूं। तो निजात याफ्ता रहने के लिए इतनी जिंदगी भी तो पड़ी है। मुझे एक बात बताएं, मसा होने या बपतिस्मा, मसा की बात करते हैं, मसा होने के बाद आप करेंगे मसीह का काम। तो जो मसीह का काम करोगे तो कोई रोकेगा नहीं। तो कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? इस जहान का खुदा, इस जहान का खुदा वो तुम्हारे मुंह के आगे रोकेगा, किंग दी शक्ल से आगे रोकेगा। इस जहां के खुदा को आप मैं देख लेना तो फिर भी यही मारी जाएगी। खुदा ने इसको कैद में रखा हुआ। जितना खूबसूरत था ना ऊपर जो हमने पढ़ा, उतना ही हो चले। तो कैसे आएगा शैतान आपके सामने? याद रखिएगा, खुदा भी जिस्म इस्तेमाल करता है, शैतान भी जिस्म इस्तेमाल करता है। किस जिस्म में आपके सामने आएगा और आपकी रुकावट बनेगा? सब तो पहला मिसाल दे तौर पे भाई, अगर अर्नेस्ट मसा होने लगे, सब तो पहले मेरी मां दी शक्ल च, फिर मेरे प्यो दी शक्ल च, फिर मेरी भैन दी शक्ल च, फिर मेरे भरा दी शक्ल च। तो आपकी मुखालफत सबसे पहले घर से शुरू होगी। ये याद रखिएगा। ये इस जिंदा पाक कलाम की कुदरत। कोई अच्छी बात है या बुरी बात है? भाई आपकी मुखालफत आपके माँ बाप बहन भाई करे, अच्छी बात है बुरी है? अच्छी बात है, बुरी बात गंदी बात, बुरी बात। बुरी बात कौन कह रहा है? कौन कौन कहते हैं बुरी बात है और कौन कौन कहता है अच्छी बात है? तू बड़े डिप्लोमेटिक है, तू अथवा तैयार नहीं चुका। अच्छी बात है, अच्छी बात है कैसे? अच्छी बात है। घरों में अपनी मदद करता है और आप जिसे भी कुछ खबरें के गाड़ी जाके करा से जाना। जो ये दादी ने एक बार फिर तोड़ रहा था। आप देखते हैं, अच्छी बात है ये। बाइबल मुकद्दस में ये अच्छी बात है, क्योंकि आपके खुदा ने कहा है, आपके मसीह ने कहा है कि मैं ये मोहब्बत कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। मैं मोहब्बत करने नहीं बल्कि आग लगाने आया हूं। बाप बेटे से, बेटा बाप से। कई हमारे गैर कौम के बहन भाई कहते हैं तुम्हारा मसीह है कि करता है, तो वो सही तो कह रहे हैं। आप शुरू करें ना ये खुदा के पाक कलाम को, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं। लास्ट टाइम वकास भाई ने 10 लाख की बात की थी, मैं आपसे 10 लाख की शर्त लगाता हूं। आप इसमें जो लिखा उसे पेश करें, आपके घर वाले आपके गिराबान पकड़ लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। 3-4 तो ऐसे बैठे हुए जो चपेड़े खा चुके हैं। हाँ, नाम बताऊं उनके? नहीं। आप देखें ना, मैं आपको गारंटी देता हूं 10 लाख 10 करोड़ जो मर्जी शर्त लगा ले, इस कलाम में जो लिखा है उसको अपने घर में पेश करें, आपका गिरेबान आपके घर वाले पकड़ लेंगे। हाँ भाई, तू आया जरा नवा पादरी उड़ा है ना, ये साढ़े बाप दादा तो चलता रहे, तू केड़ी खेती मूली हुई? कभी करके देखिएगा। इस कलाम में इतनी कुदरत पाई जाती है कि शैतान को आग लगती है। आप आज अगर मसा होंगे, आप आज खुदा की खिदमत करने को है, तो आपके मुखालिफिन आपके घर से पहले उठेंगे, फिर आपके मोहल्ले से उठेंगे। तो उठने दे भाई, अच्छा है उठने दे। ये भी तो खुदा का कलाम ही पूरा हो रहा है। मुखालिफिन होंगे तो काम होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ जी हम काम कर रहे हैं। तो ये सब सुन सनाटा ये तो फिर तुम भी ना गई हो, आप ही फिर उन्हीं की तरह है। वो ना आपके खिलाफ है ना उनके खिलाफ है, सब सुन पड़ा हुआ है। जब मुखालफत होगी तो फिर कुछ धमाकादार होगा, कुछ उबला हुआ होगा। आखिरी बात जब मैं आपसे करने को हूं तो ममसूक रोबी, फिर हमने देखा कि मसाशुदा, आपने अपने खुदा के पाक कलाम के ताबे रहना है और अपने उस्ताद के ताबे रहना है जहां से आप सीखते हैं। उस्ताद तो वैसे बड़े ही जने होंगे ने, किन्ने होंगे ने? बड़े ही जिन्ने होंगे ने। मुझे एक बात बताएं, यशवा
क्या मूसा से अलग किसी को अपना उस्ताद मानता था? एलीशा एलिया से अलग किसी को अपना उस्ताद मानता था? बताने वाले बहुत होंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है जब बाप एक है तो फिर उस्ताद भी एक ही है। हालेलुया। बाप एक है तो उस्ताद भी एक है। आपने अपने खुदा के पहले इस कलाम के ताबे रहना है, फिर अपने उस्ताद के ताबे रहना है। अब उस्ताद के जब आप ताबे रहेंगे तो बेशक इंसान, मैंने आपसे पहले कहा, वो गलत तालीम के पल्ले पड़ जाता है। फिर आपने खुदा से अक्ल सलीम मांगनी है कि खुदा ये क्या हो रहा है। खुदा आपको बताएगा, मुखालफत से आपने डरना नहीं है। आप अगर खुदा के साथ चल रहे हैं तो मुसीबत आप पे आएगी ही आएगी। कितने %? 1000% आएगी आप पे, 100% नहीं, 1000%। तो सवाल पैदा होता है, अगर मैं ममसूह होने जा रहा हूं, या मैं अनॉइंटेड वन होने जा रहा हूं, या मुझे अनॉइंट किया जा रहा है, मुझे मसा किया जा रहा है, तो फिर तो खुदा मेरे साथ होना चाहिए, तो मुसीबत क्यों आएगी? कैसा सवाल है, बनता है कि नहीं? भाई मैं मसीह के नाम पर मसा हो रहा हूं, बाप बेटा रूह कुदुस के नाम पे मसा हो रहा हूं, तो खुदा तो मेरे साथ है और मैं खुदा का ही काम कर रहा हूं, तो फिर मेरी क्यों बुराई हो रही है, या मेरी मुखालफत क्यों है? बुराई करने वाले करते रहते हैं। आप देखते हैं यीशु मसीह को जब वो 40 दिन रात का फाका कुशी करते हैं, बपतिस्मा उससे पहले लिया होता है उन्होंने, मसा भी आप कह सकते हैं। खुदा की खिदमत अभी उन्होंने, यानी अपनी खिदमत या जो भी आप आसानी से समझ सके, अभी शुरू नहीं की, अभी शुरू नहीं की। खुदा का रूह उन्हें शैतान से आजमाने के लिए कहां ले जाता है? उन्होंने जा सकता है, तो तुसी मैं केड़ी की चीज, हरे दरख्त को नहीं छोड़ा तो हम तो फिर सूखे दरख्त। खुदा खुद चाहेगा कि आपको आजमाया जाए। आपने ते गुलशर यहां बड़े उड़ाए ने, आपने ते है ऐशियां बढ़िया मारिया ने, तो चाह बड़े ही हिसाब किताब अपने सीधे भी कीते, पुठे भी कीते। अब खुदा आपसे चाहेगा कि जब तू मेरा काम करे तो मैं देखता हूं तू कहां तक चल सकता है, कहां तक चल सकते हैं। बाइबल में लिखा है जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का पाएगा। एक उन्हें शर्त रख छड़िए, इदू अलावा और कोई नहीं। वफादार रहना बहुत जरूरी है, मेरे ना नहीं, जिंदा खुदा दे पाक कलाम ना। हालेलुया। वफादार रहने का मतलब है ना इसमें से एक नुक्ता बढ़ाना है, ना एक नुक्ता इसमें से घटाना है। अलीशा नबी, आखिरी बात करने को, अलीशा नबी गरीब आदमी था, पौलुस रसूल गरीब आदमी था। अलीशा नबी गरीब आदमी था, पौलुस रसूल क्या चीज थी? क्या चीज थी पौलुस रसूल? बला थी, बला, रोकड़े के मामले में। अलीशा नबी बिजनेसमैन था। अलीशा नबी के कितने बैग सन जो चरा रहा सी हो। आप लोग नहीं पढ़ते ना कलाम, इसीलिए आपको बता रही। ये मालदार पार्टीज थी। क्या थी? पैसे में मालदार थे। आप पौलुस रसूल को देखते, पौलुस रसूल ड्यूल नेशनैलिटी रखे हुए थे। एक किसकी? एक रोम की और दूसरी इस्राइल की, ड्यूल नेशनैलिटी। आज नहीं तुसी कहते साडे अक्सर भैन भरा कनाडा होते हैं, अमेरिका होते हैं, तो वहां पक्के हो जाते हैं, जिन्हों कहते हैं पक्के कर दो, वो वहां के भी नेशनलाइज होते हैं, वो यहाँ के भी नेशनलाइज। आप वहां के भी शहरी और आप यहाँ के। एक कंगला बंदा करता है, बाहर जाना कंगला बंदा कर सकता है। अजीजों, ये बड़े मालदार लोग थे, और बाइबल मुकद्दस में सबसे ज्यादा जुबानें उस बंदे को आती थी। गरीब बंदा तो जुबान सीख ही नहीं सकता, सीखेगा तो अपने महल्ले दी 3-4 सीख लेगा। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीखी थी, वो चाहे यूनानी हो, आपको पता नहीं यूनानियों में जाके वो मुनादी करते रहे, वो चाहे लातीनी हो, रोम की लैंग्वेज, वो चाहे इरामी हो, यीशु मसीह जो बोलते थे, वो चाहे इब्रानी हो, चाहे अपनी जुबानी क्यों ना। मालदार पार्टी थी। अमाल की किताब आखिरी बाप पढ़े तो जाके कितने रहता ही 2 साल किराए दे कराच रहे। फिर आप देखते हैं मुकद्दस अलीशा नबी को, पैसे वाला बंदा था, उन्हें सब कुछ दुआ ने पीछे कीता तो यीशु न चल लगा। कैसी बात है। बरनबास और उनकी वाइफ ने अपने घर और खेत बेचकर पतरस के कदमों में रखे कि आलो जी जाओ जाके मसीह की मुनादी करो। समझ रहे हैं आप बात? आप जब मसीह के साथ चलते हैं तो बीच में पैसा नहीं आता। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, आपने अक्सर औकात आपने बड़े बड़े पासवान देखे होंगे जिन्हों को गड्डियां ने, बंगले ने,
बाहर के मुल्क से बढ़िया बढ़िया असासे ने, बड़े बड़े माल हैं उनके पास, बड़े बड़े बैंगलोस हैं, बड़े बड़े अपने प्राइवेट जेट हैं। अगर आप गोरों को देखें, मजे की बात आप उनकी तालीम देख लें, और मजे की बात आप उनके मजमे देख लें। तालीम कख कंडा कोई नहीं, मजमे ऐटे ते अदे नालों बहुते जाली मौजज़ात और शिफाएं, जितने भी उठा के देख लें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है बुलाए गए तो बहुत है लेकिन बरगजीदे थोड़े हैं। बुलाए गए बड़े ने, बरगजीदे थोड़े। चाहे कौम बनी इसराइल आसमान के सितारों या जमीन की रेत की तरह क्यों ना हो, मेरी बादशाही में थोड़े ही लोग आएंगे। थोड़े कितने, फिंगर टिप्स पे आप काउंट कर सकते हैं। अजीजों, ये जंग बहुत खतरनाक है, और मैं आपको बताऊं ये दुनिया का सबसे खतरनाक काम है जो आप करने के लिए जा रहे हैं, और आपको ये करना भी है। इसके बगैर आप अगर कहें कि ये मसाओं की खिदमत कर रहा है, तो बंदा पूछे थल्ले जड़ा बैठा हो भी करेगा, वो क्या चीज है? क्या वो खुदा का बंदा नहीं? अक्सर आपने देखा होगा, अगर कोई खुदा का बंदा या कोई खातिम वगैरह गुनाह कर लेता है की और पीछे सारे सोटे लेके चढ़ देने के नहीं, और उन्होंने की कहते ताला मारा, तू ते खुदा दा बंदा है। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? तू ते खुदा दा बंदा पूछे तू किदा बंदा है? भाई मेरा एक गुनाह तेरे इन्ना नजर आ रहा है, तू जो रोज करना है, तो तू किदा बंदा है? तू इब्लीस दा फिर बंदा है। भाई मैं अगर खुदा का बंदा हूं, आप खुदा के बंदे, तो फिर आप जो गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, तो आप किसके बंदे हैं? वो गुनाह के खुदा के बंदे तो सारे ही है। असल चीज है गुनाह। गुस्सा कर लेकिन गुनाह। अजीजों, याद रखिएगा, फिर से आखिरी बात करने को, मुकद्दस एलीशा नबी, मुकद्दस पौलुस रसूल, सबसे ज्यादा मारे खाने वाला पौलुस रसूल, 10 मसा हो के उन्हें मारा खा दिया। मुकद्दस एलीशा नबी मसा होके आखिर में बीमारी के साथ मरा था वो। कई लोग कहते तू खादम है, तू ते आप बीमार है। भाई तू खादम है, तू ते आप गंजा है। आपको पता है एलीशा नबी गंजे थे? पता है आप लोगों को? आप लोगों को नहीं पता। एलीशा नबी गंजे थे, गैर कौम के फिलिस्तीनी जो थे वो उन्हें छेड़ते थे, और बाइबल में लिखा है वो खुदा की तहकीर कर रहे और खुदा के बंदे की तहकीर कर रहे थे। क्यों ना होया की? वाह, जबरदस्त, क्या बात है। 2 रिछनियां जंगल से आई और 42 बच्चों को चीर के निकल गई, मार के फाड़ के चली गई, मार डाला हूं कि खुदा और गंजपन ठीक नहीं कर सकता, 42 बच्चे मरवाने सर। मूसा का थथापन ठीक नहीं कर सकता, हारून भी नाल रखवाना ही। खुदावन बड़ी बरकत दे, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हदिया। बच्ची के लिए एक बार जोरदार ताली। तो भाई आप जब देखते हैं किलो बार होया नहीं कह रहे बात ही बस कर जा अच्छा ना पढ़ा। आप जब देखते हैं एलीशा नबी को, मूसा नबी को, तो उनकी जुबान ठीक करते थे। हारून को जरूरी रखना था, हारून वही जो मुजस्मा बना के दे रहा था, जान देने तक वो वफादार नहीं रहा, लेकिन जिंदा खुदा से अपना पैगंबर कहता है। आप अजीजों सोचिए, मसा हो ये बिब्लिकल प्रैक्टिस है, और इससे आप मुसीबत में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये मैं आपको पहले बता दूं। ऐ कोई फुल्ला दी सेज नहीं जिसे तुम टुर के जा रहे हो, ये कांटों भरा रास्ता है जी। तो एलीशा नबी को जब आप देखते हैं, मुकद्दस एलीशा नबी ऐसा जिंदा खुदा का सूरमा था कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, अपना सब कुछ बेचा, अपने बैलों को कुर्बान किया, अपना माल मता सब रुसवा करके वो अपने उस्ताद एलिया के पास चला गया। अब जब एलिया के पास गया तो वहां पर भी आगे जब आप जाते हैं तो कभी वो बेचारा जलजाल जा रहा है, कभी वो यरीहो जा रहा है, कभी वो दरिया यरदन को क्रॉस कर रहा है। और याद रखिएगा, एलिया का अकेला स्टूडेंट एलीशा नहीं था, अंबिया ज़ादों के बेटे भी थे उनके साथ। इन्हें अड़े होंगे ने काम दा एक ही निकलदा विचों, और एक ही जड़ा दुनिया ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇ काफी ਹੁੰਦਾ। दुनिया में इतने सारे उसके शागिर्द थे एलिया के, अंबिया ज़ादों के बेटे, रईसों के बेटे थे वो,
लेकिन याद रखिए, चुना तो खुदा ने अलीशा को चुना क्योंकि वो खुदा के साथ अपनी रगबत लगा बैठा। और मसा की आज बात हो रही है, तो कितना मसा मांगा? एलिया पूछता कि अच्छा चल ठीक है, उत्ते जा तो पहला मैं चाहना कि तू कुछ मेरे तो मंगे। ऐ अलीशा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? कितनी बड़ी बात है ये। आपको पता है ये बात किसी और ने भी की है। एक मैं दवाई अपनी हो रही है। माँ जी एक मिनट, ये पहला है जी, यीशु ने कहा कि एक दवाई एक जुमला है कि मैं चाहता हूं कि मैं ऊपर जाने से पहले आसमान पर जब मैं गायब हो जाऊं तो मैं चाहता हूं कि मैं तेरे लिए कुछ करूं। बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तुझे क्या दूं? ये यीशु मसीह ने नहीं कहा। और कोई बता मैं तेरे लिए क्या करूं? यहोवा खुदा ने सुलेमान बादशाह को कहा था कि सुलेमान दस मैं तेरे लिए की करा। तो सुलेमान ने की मंगे आई एक तो मत मांग गई थी। आपने भी आज जब बसा होना है तो जिंदा खुदा में हिकमत को मांगना है। हिकमत अपनी नहीं मांगनी, अकल अपनी नहीं मांगनी। अकल आपने मांगनी है तो जिंदा खुदा की मांगनी है। और जिंदा खुदा की हिकमत ये यहोवा खुदा का पाक कलाम है। जिंदा खुदा की हिकमत यीशु मसीहा है। जिंदा खुदा की हिकमत बाइबल मुकद्दस है। जिंदा खुदा की हिकमत जिंदा खुदा के मुंह से निकला हुआ कलमा है। जब आप जिंदा खुदा के साथ चलेंगे, उसकी हिकमत के साथ चलेंगे, तो याद रखेगा आप जमीन पर भी खजाने जमा करेंगे और आसमान पर भी खजाने जमा करेंगे। आप अपनी खिदमत के जरिए से जमीन पर भी रूहें बचाएंगे और आसमान पर भी। हालेलुया। अलीशा नबी जिंदा खुदा के साथ साथ चलता रहा। अलीशा नबी ऐसा खुदा के साथ चला, ऐसा ममसू था वो, उसकी हड्डियों के अंदर जिंदा खुदा का पाक कलाम। अब जब उसे दफना दिया गया तो वो हजारों सालों के बाद या सैकड़ों सालों के बाद सिर्फ हड्डियां ही बची। अब हड्डियों के अंदर वो मसा था, हड्डियों के अंदर वो ममसू का असर था, हड्डियों के अंदर जिंदा खुदा का बीज था, हड्डियों के अंदर जिंदा खुदा का पाक कलाम था। अब गैर ईमान वाला ना मकतूल फौजी जब मर गया उसे खड्डे में फेंका गया, अलीशा की हड्डियों के साथ लगा और ना मकतूल जिंदा हो गया। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां। हालेलुया। यह है ममसू की हड्डियों का कमाल। यह है किसी मसाशुदा सूरमा की हड्डियों का कमाल। यह है उस मुबारक मौत का कमाल। यह मौजज़ा आपने नए अहदनामे में भी नहीं देखा होगा। यह मौजज़ा आपने नए अहदनामे में भी नहीं देखा होगा कि हड्डियां ना लाद के मुर्दा जिंदा हुए और वो भी गैर ईमान वाला। यह है खुदा की कुदरत जब वो करने पे आता है। सबके नाम उसने ऐसी ऐसी मौजज़े किए हुए हैं जो कायनात में किसी दूसरे के साथ हुए ही नहीं। मिसाल के तौर पे यशवा ने कहा ऐ सूरज ढलना नहीं चाहिए। मैं जरा शयातीन को खत्म करता। साइंस भी कहती है 24 घंटे में एक दिन कम है। उदन चंद आए नहीं सी ते सूरज ढले नहीं, 24 घंटे चानन सी और वो शयातीन को मारता रहा। 31 बादशाहों को मारा। आप समझते हैं ये बहुत बड़ी जंग का ऐलान है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वॉरफेयर। सो खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जय यीशु दी, जय यीशु दी। हालेलुया। आइए अजीजों अपने सरों को झुकाएंगे ताकि जिंदा खुदा के आगे अपनी मुनाजातें, इल्तिजाएं और दुआएं पेश कर सकें। दवाई सुन लो। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਬਾਦ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸਾਡਾ